Very good morning, students. I hope you all are fine. In first chapter, we have completed all theory topics. Today I am going to explain the concept of practical part, which is very important. In class 11, you had learned how to prepare final accounts of sole proprietorship. Yes, if you remember, you were preparing trading account, P&L account and balance sheet. So compared to sole proprietorship, which new accounts you have to prepare for final accounts of partnership firm? So let's understand. The first account is same as sole proprietorship, trading account. Then second is P&L account. Then P&L appropriation account, partners capital account and balance sheet. In grade 12 you have to learn how to prepare final accounts of partnership firm. आपको नेक्स्ट चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं जो पार्टनरशिप फर्म के हैं. आपने जो बेसिक सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट सीखे थे 11, उससे कुछ अलग है. फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ अकाउंट इज सेम एज सोल प्रोप्राइटरशिप, वो सेम ही है. बट फर्स्ट चैप्टर में आपको सीखना है कि दो अकाउंट्स जो एडिशनल है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनाने हैं, उससे रिलेटेड एंट्रीज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड ऑल. Now, why we are preparing these two accounts which were not prepared in sole proprietorship final accounts? What are the reasons? So let's understand. If you remember, in final accounts of sole proprietorship, you were preparing balance sheet in this way, which you can see on your screen. आप जो भी कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल लायबिलिटी साइड आप रिकॉर्ड कर रहे थे. उसमें अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड हो रहा था. ड्राइंग की इफ़ेक्ट भी इसी में ही आ रही थी. आप ड्राइंग का बैलेंस माइनस करते थे. यस, सो ऑल द इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग यू वर राइटिंग ऑन कैपिटल लायबिलिटी साइड. यस, दैट वॉज in accounts of sole proprietorship. Now you are preparing accounts of partnership firm. So in partnership firm there are two or more than two partners. Yes, so their capital might be different. उनकी capital अलग अलग होगी. Yes, उनका profit अलग अलग होगा, उनका drawings भी अलग होगा. So if you imagine how you will prepare capital head in capital liability side, you have to prepare separate head of capital for each partner. Yes, like you have to prepare capital head for partner A, then same thing for partner B, and if more partners, same you have to prepare capital head separately. So that will be very complex. So in partnership firm you have to prepare capital account separately. Yes, that we will understand how to prepare. हम कैसे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, वो आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी. देन सेकेंड P&L appropriation account. Now why we are preparing P&L appropriation account separately? If you remember, in sole proprietorship you were preparing P&L account where all expenses you were recording on debit side and all incomes on credit side. Yes, now in partnership firm there are some expenses and incomes which are related to partners. For example, if we talk about interest on capital, it is paid by firm to partner. If you remember, I had explained you that partners are contributing capitals for firm. Yes, like partner A, B and C, they have contributed capital. So if they are contributing capital and there is provision for interest on capital, so firm has to pay. अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो पार्टनर ने कैपिटल दी है, सो फर्म उस कैपिटल पे प्रोविजन के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट पे करेगी. यस, सो दैट इज एक्सपेंस फॉर फर्म. पार्टनर के लिए भले इनकम है,
यस, बट अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के लिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सपेंस है. नाउ देर आर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स. Those expenses and incomes are not recorded in P&L account. So for that, separate P&L appropriation account is to be prepared, where all expenses and incomes related to partners will be recorded. Now see, here is format of P&L appropriation account and partners capital account. P&L appropriation account is same as P&L account. Debit side all expenses will be recorded and credit side all incomes will be recorded. Partners capital account, the amount column will be prepared separately for each partner. Like here I have prepared amount column separately for partner A and B, same on debit side as well as on credit side. Now, what is the entire specimen of P&L account and partners capital account? I'll explain with entries and its effects. In final accounts of partnership firm, drawings account is not prepared separately. Its balance is transferred to capital account, which means drawing account will be closed with capital account. So let's understand this concept. As you have learned that whenever partner withdraws some cash or goods for firm, we used to pass this entry which you can see on your screen. Drawings account debit as partner is withdrawing and partner is taking cash or goods from firm, so cash goes out, so cash account credit, and same for goods, purchase account is credited. So this way we were passing entry, and its effect you can see in partners drawing account. Drawing account is debited, so debit side we were recording the effect of credit like to cash to purchase. yes, हम इस तरह से एंट्री की लेजर में पोस्टिंग करते थे, और जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तब हम इस लेजर को क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ के ट्रायल बैलेंस बना रहे थे. yes, जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट्स ली हुई है, कैश 2000 एंड परचेज 4000, और फाइनली टोटल जो 6000 का ड्राइंग हुआ है उसका क्लोजिंग बैलेंस हमने ढूंढा है. इस तरह से हम 11th स्टैंडर्ड में लेजर पोस्टिंग में कर चुके हैं. येस, बट हियर एज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ड्राइंग्स अकाउंट सेपरेटली, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. नाउ हाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र, हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? विद दिस एंट्री वी कैन क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट. सी, वही 6000 क्रेडिट साइड है, वैसे हम क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे थे, यहाँ पे हम इस बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे. सो एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट. अब जैसे कि ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी दूसरी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगी. येस, एज डबल एंट्री सिस्टम, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड. सो यू कैन सी इन दिस स्पेसिमेन टू ड्राइंग्स अकाउंट, यहाँ पे जो भी पार्टनर का ड्राइंग्स का बैलेंस दिया होगा वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे. येस, सो दिस वाज अबाउट पार्टनर्स ड्राइंग. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स ड्राइंग. इट विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. देन नेक्स्ट, see, partners drawing is not affecting P&L appropriation account, so there will be no effect in P&L appropriation account. Now the next is interest on capital. As we know that partners are contributing for capital, जो भी partners है वो फॉर्म में capital लेके आ रहे हैं. yes, अगर provision है तो उनको interest भी मिलेगा. so here firm is paying interest to partners. yes, so for firm it is an expense. so first entry में हम ये expense record करेंगे. so expenses are debited,
सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है और ये जो फर्म का एक्सपेंस है वो हम किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर को। वैसे तो हम टू कैश कर सकते हैं, बट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये अमाउंट हम कैपिटल में दे देंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्यों आया, करंट अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो फॉर दिस वीडियो ओनली कंसिडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इस तरह से फर्स्ट एंट्री होगी जहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया और पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट किया। अब ये जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्सपेंस हम पीएनएल में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा। सो द सेकेंड एंट्री विल बी लाइक दिस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट था अब वो क्लोज हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। सो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री होगी। अब इसकी इफ़ेक्ट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम दो ही अकाउंट बना रहे हैं, सो वी विल सी व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स इन दोज टू अकाउंट्स, पीएनएल एप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे दोनों एंट्री में आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट की इफ़ेक्ट फर्स्ट एंट्री में है, यस, एंड सेकेंड एंट्री में पीएनएल एप्रो की है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम अकाउंट बना नहीं रहे हैं, तो इसकी दो इफ़ेक्ट आएगी, फर्स्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यू कैन सी इन दिस स्पेसिमेन, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो हो सकता है कि दोनों पार्टनर का अलग अलग हो एज पर देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कैपिटल। सो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। यहाँ पे तीनों पार्टनर का अलग अलग से हम कैलकुलेट करेंगे और टोटल हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, यस। सो दिस वे वी विल रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको सिंपल वे में इसको लर्न करना है कि इसकी इफ़ेक्ट क्या होगी, यू डोंट वांट टू लर्न एंट्रीज एंड ऑल, यस, कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है दैट आई एक्सप्लेन यू, यस, कि एंट्री क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बट अगर सिंपली आपको लर्न करना है, सिंपली आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप इस तरह से कुछ इसको लर्न कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक्सपेंस है, सो पीएनएल एप्रो में डेबिट साइड, एंड ये हम पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर के कैपिटल में डाल देंगे, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, यस, सो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सो पीएनएल एप्रो में हम डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और पीएनएल एप्रो इसलिए क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है, यस, सो पीएनएल एप्रो में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। सिंपली ये ऑपोजिट होगा, पीएनएल एप्रो में डेबिट है तो कैपिटल में क्रेडिट होगा, यस। सो सिंपली यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस वे, पीएनएल एप्रो डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। Then next is salary, bonus, commission, remuneration to partners. अगर प्रोविजन में मेंशन है तो पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन मिल सकता है, यस। अब सेम अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, तो अगेन ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। सो दिस इज एक्सपेंस ऑफ फर्म विच इज़ पेड टू पार्टनर्स, यस। अब ये हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट, और ये सैलरी ये सब किसको दिया जा रहा है, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। और सेम वे में ये जो एक्सपेंस है हम ट्रांसफ़र करेंगे, सो ट्रांसफ़र की दूसरी एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन अकाउंट। इसको भी अगर आपको सिंपली लर्न करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं इसको।
अब जैसे कि हम यहाँ पे सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। हम डेबिट साइड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और ये पार्टनर से रिलेटेड है, सो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। सो डेबिट साइड हम जो भी पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन है वो रिकॉर्ड कर देंगे, और ये सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन हम पार्टनर को दे रहे हैं, सो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगेन P&L एप्रो डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अगर मैं आपको इसी स्पेसिमेन में बताऊं तो आप देख सकते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे है। दिस इज़ पार्टनर्स कैपिटल। सो अगर हम सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो उससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सो वी विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। देन द इफेक्ट इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, सो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? पार्टनर्स आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम फर्म, यस, सो इफ दे आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम फर्म दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, यस। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पार्टनर्स पे करेंगे फर्म को, पार्टनर्स विल पे टू फर्म। सो यहाँ पे फर्म की इनकम हो रही है, यस, पार्टनर्स आर पेइंग इंटरेस्ट टू फर्म, सो फर्म इज अर्निंग इंटरेस्ट, यस। सो यहाँ पे ये फर्म के लिए इनकम है एंड इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। सो यू कैन सी इन फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड, ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये इनकम है, और ये कहाँ से रिकवर करना है? पार्टनर्स से, एंड वी आर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस। सो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही ये इंटरेस्ट रिकवर करेंगे। देन सेकेंड एंट्री में ये जो हमारी इनकम है ये हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, यस, और ये पार्टनर से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ है अब वो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स सी द इफेक्ट इन बोथ अकाउंट्स। सी पार्टनर्स कैपिटल, ये हम पार्टनर से रिकवर कर रहे हैं, यस। सो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और हम उसको P&L एप्रो में और पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट एंड P&L एप्रो में क्रेडिट, क्योंकि ये फर्म की इनकम है एंड इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। अगेन लेट्स सी in simple way how you can give effect of interest on drawings. Now see, यहाँ पे हम interest on drawings की बात कर रहे हैं, ये फर्म के लिए इनकम है, so incomes will be recorded on credit side, तो हम P&L एप्रो में क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे। P&L एप्रो इसलिए क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है। अब P&L एप्रो में अगर क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? डेबिट, क्योंकि हम पार्टनर से ये रिकवर कर रहे हैं, उन पे चार्ज कर रहे हैं, उनकी कैपिटल कम होगी, यस। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। द नेक्स्ट इज प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। हम जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, यस। जब हम कुछ रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में कैसे इफेक्ट आएगी? यहाँ पे हम जो जनरल रिजर्व के लिए बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे वो P&L एप्रोप्रिएशन से करेंगे। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कम होगा, सो इट विल बी डेबिटेड, और हमारी एक रिजर्व क्रिएट होगी और रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसकी इफ़ेक्ट कैपिटल में तो आएगी नहीं क्योंकि एंट्री में कहीं पे भी कैपिटल अकाउंट तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, यस। सो कैपिटल अकाउंट में नो इफेक्ट एंड P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट, यू कैन सी ऑन डेबिट साइड इट इज़ मेंशन जनरल रिजर्व, यस। सो एज पर गिवन अमाउंट वी विल ट्रांसफर सम पार्ट एज जनरल रिजर्व।
इसकी दूसरी इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में आएगी, बट राइट नाउ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, सो लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम जो P&L अकाउंट बना रहे हैं उसका कुछ प्रॉफिट या लॉस आएगा. येस, इफ़ यू रिमेंबर इन P&L अकाउंट यू वर फाइंडिंग नेट प्रॉफिट, जिसमें आपको P&L अकाउंट बनाने के बाद कुछ एक साइड का बैलेंस ज़्यादा होता था, एक साइड का कुछ बैलेंस कम हो रहा था. येस, फिर आप बैलेंस करके उसको निकाल रहे थे. येस, नेट प्रॉफिट, या काफ़ी बार एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो नेट लॉस भी आता था. येस, इफ़ यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. सो यहाँ पे हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्लोज करना है. अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करके हमें जो बैलेंस आ रहा है वो या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है. येस, अब वो प्रॉफिट या लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. येस, द फर्स्ट एंट्री इज़ अबाउट प्रॉफिट. अगर P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी इफ़ेक्ट हम कैसे देंगे. जो हमारा प्रॉफिट है उसका हम बैलेंस निकालते हैं तो डेबिट साइड सर्कल होता है. येस, सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ये हम पार्टनर्स को दे देंगे. पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. अगर लॉस है तो रिवर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to P&L appropriation account. Let's see the effect in specimen. First I'll show you in P&L appropriation account. अगर P&L appropriation account में प्रॉफिट है सो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा, आपकी इनकम्स ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, तभी आपको कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा. यस, ये प्रॉफिट हम बैलेंस मेथड से हम निकालेंगे और यहाँ पे हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. येस, दिस इज़ फर्स्ट इफेक्ट टू फाइंड प्रॉफिट, और इसे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग पार्टनर्स. देन सेकेंड इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट. You can see in partners capital it is on credit side by P&L appropriation account divisible profit. और लॉस की रिवर्स. यस, अगर आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम्स कम है, तो आपका क्या आएगा, लॉस आएगा. एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड लॉस, द ऑपोजिट इफेक्ट हियर, क्रेडिट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट. So this way you have to find profit or loss of P&L appropriation account, and then you will transfer to partners capital account. Let me show you in simple way how you have to give effect. See, मैंने roughly P&L appropriation account बनाया है. एंड द सेकेंड वन इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपका बैलेंस इस साइड बनेगा. सो हियर यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स एंड देन क्रॉस इफेक्ट विल बी गिवन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. यस, और अगर लॉस है तो ऑपोजिट आएगा, आपका बैलेंस बनेगा क्रेडिट साइड और इसकी इफेक्ट आएगी डेबिट साइड. So this way you have to give effect of profit or loss of P&L appropriation account. Then next, interest on loan of partner. अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि काफ़ी बार अगर फर्म को कुछ फंड्स रिक्वायरमेंट है तो वो बाहर के सोर्स से बोरो करे, इट्स बेटर कि वो कोई पार्टनर से ही लोन ले ले. यस, तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस में फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है. यस, फर्म कैन टेक लोन फ्रॉम पार्टनर. सो जब फर्म पार्टनर से ही लोन ले रही है तो उसको लोन अमाउंट रीपे भी करना होगा. यस, सो उसकी क्या क्या इफेक्ट होगी, लेट्स अंडरस्टैंड. लेट मी क्लियर दैट दिस लोन अमाउंट इज़ ट्रीटेड लाइक थर्ड पार्टी. जैसे हम बाहर के कोई थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो
सो इसका कनेक्शन कहीं पे भी P&L अप्रोप्रिएशन से नहीं है. येस, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि भले ही ये पार्टनर से रिलेटेड है बट इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, एज अ थर्ड पार्टी. हम ऐसे समझते हैं कि हमने किसी बाहर के कोई पर्सन से लोन ली है. येस, इट इज़ ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लोन. सो इसकी इफेक्ट में कहीं पे भी P&L अप्रोप्रिएशन नहीं आएगा. नाउ यू कैन सी फर्स्ट एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड. अगर हम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इट विल बी डेबिटेड. एंड इफ़ वी आर पेइंग इन कैश, टू कैश अकाउंट. अगर हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारी लायबिलिटी है. सो सेकेंड इफेक्ट यू कैन सी इट इज़ आउटस्टैंडिंग. जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारी लायबिलिटी की तरह शो होगा. और फाइनली जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे, हम P&L अकाउंट में करेंगे. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है. येस, सो दिस वे वी विल गिव इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर. Gradually when we will start the practical part sums, your concept will be more clear. धीरे धीरे ये सारे concepts और clear हो जाएंगे. Now let's see the remaining things. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये स्पेसिमेन देखोगे तो उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. So let me explain. First we will see about P&L appropriation account. P&L appropriation में क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट है. कहाँ से आया ये नेट प्रॉफिट? जब हम पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? P&L अप्रोप्रिएशन में. यस, जब हम प्रैक्टिकली ये सम करेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगा. सो ये सिर्फ बैलेंस है. जैसे हम ट्रेडिंग का लेके जाते हैं P&L में, P&L का लेके आएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में. देन यहाँ पे कुछ एडिशनल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. अब करंट अकाउंट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. सो राइट नाउ यू कैन सी वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L अप्रो में सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, कोई भी पॉइंट बाकी नहीं है. देन लेट्स सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. लाइक पार्टनर की कैपिटल का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, वो हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, सो वी विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है. अगर पार्टनर्स रनिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर और कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उसकी हम इफेक्ट देंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये भी हम जब प्रैक्टिकली सम करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा. अगर इन केस कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बट इट इज़ वेरी रेयर, नहीं दिया होगा. इसके अलावा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस का है. जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है और वो क्लोजिंग बैलेंस हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में. दिस विल बी मोर क्लियर विथ सम. सो हियर वी हैव कवर्ड all the points of partners capital and P&L appropriation account. I hope all the points are clear to you. If you have any doubt, feel free to contact me.